Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so very good morning. In the yesterday video, we have already gone through the quicksort method. What is quicksort method? How we can solve or how we can sort the given set of elements using quicksort method. How we are going to implement the quicksort function in C program. Now today we will see a new sorting technique known as shell sort method or shell sort technique. So basically what it means a shell sort technique. Shell sort, it is one of the internal sorting techniques. It comes under the internal sorting technique. Why it comes under the internal sorting techniques? Because shell sort will be worked on a very small amount of data. Whenever we are working on a small amount of data, so at that time we have to use all the internal sorting mechanisms. But if the data size in huge amount, at that time we have to use the external sorting techniques. So today we are going to study about the shell sort method. So basically what it means a shell sort method. Shell sort, it is one of the sorting algorithm. It is invented by Donald Shell in 1959. The shell sort technique, or it is a method which is invented by an inventor or as a researcher known as Donald Shell in the year of 1959. Basically, shell sort, it is a generalized version of insertion sort method. Already we have seen the insertion sort method. Already we have executed a function for insertion sort method. How we can sort out the given set of elements using insertion sort method. Everybody know about the insertion sort method because already we have seen in the previous video. So shell sort, it is a generalized version of a insertion sort method. Shell sort, we can also call it as a gap based sorting, or we can also say distance based sorting. Shell sort, it is also known as gap based or distance based. Many times what happened in the university examinations for confusing, the question will be asked like this: what do you mean by gap based sorting? What do you mean by distance based sorting? What is distance based sorting? Or sort a given set of elements using distance based sorting. The question will be asked like this for confusing the students. So don't be confused. Shell sort, which is also called it as a gap based sorting, or we can say distance based sorting, or we can say interval based sorting. Why it is a distance, gap, and interval based sorting? Till time, whatever examples we have seen in the previous sorting techniques, what we have done, we have compared each and every element with its adjacent, or first element compare with second with fourth, or first element compare with all the adjacent element, or we can say in the insertion of what we did, first element compare with zero in the first step, and in the second step, second element will be targeted, second will compare with zero, second will compare with one. Likewise, we have sorted the elements. In the quick sort, what we did, we have a pivot element, we have a left element, we have a right element. So अब लोग left को move करते हैं, right को move करते हैं towards the left direction. So according to that, according to the insertion and deletion, according to the ascending and descending order, we are going to swap the elements. So likewise, different each and every sorting technique is having a different logic, or they are working on a different principle. So same thing happened with the shell sort. Shell sort is also having the one phenomena, or because one type of a fundamental ideas, or because one type of principle. On that particular principle, the shell sort will be working. So shell sort, every element will be compared with the particular element as per the gap, or as per the distance, or as per the intervals. एक डिस्टेंस लेके आपका एलिमेंट कंपेयर होगा, राइट? सपोज योर गैप वैल्यू इज 5, और वी कैन से योर डिस्टेंस वैल्यू इज 5, और यू कैन से योर इंटरवल इज 5. इट मींस दैट योर फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर विद द फिफ्थ एलिमेंट. वहां से जो पांचवा एलिमेंट आता है उससे कंपेयर होगा, ठीक है? फिर वहां से जो पांचवा एलिमेंट आता है उससे कंपेयर होगा. दैट मींस डिस्टेंस 5 का डिस्टेंस रख के वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा. दैट इज जस्ट एग्जांपल. ओके, हाउ वी आर कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड गैप विद दिस लेटर ऑन. सो टिल टाइम
what we have learned in shell sort, the elements will be compared according to the distance or according to the gap, whatever gap or distance we are going to consider. Now the problem is how you are going to consider the gap as well as the distance. हम लोग gap और distance को या फिर interval को कैसे consider करेंगे? How we are going to find out the gap? यानी कितने distance के बाद element compare होना चाहिए? We'll see one example also. Okay, at a time you will get very much clear idea about this shell sort. So how we are going to calculate a gap, or how we are going to calculate the distance? So distance or gap will be calculated with the help of one formula. The formula is distance or gap, which is equal to floor of, n divided by 2. What written over here? यहाँ पे देखिएगा d1 is equal to यहाँ पे इस formula, ये जो formula दिया हुआ है. So here what is written? d1 is equal to gap. That means gap is nothing but distance. Whenever you are going to find out a distance, so always nomenclature will be from distance d1, gap g1, distance d2, gap d2. Likewise, it is depend on you कि आप क्या terminology और क्या उसका variable का नाम देते हो. That is totally depend on you. So suppose whenever we are going to find out the first distance, so always it is nominated as a d1, or if you are going to find out a first gap, it will be nominated as a g1. Okay. So how we are going to find out a distance of gap? So कैसे calculate करते हैं? So gap or distance will be calculated, that is d1. अगर मुझे find out करना है, so floor is equal to n divided by 2. So that floor is nothing but a floor function which is already exists in your system. आपके सिस्टम में floor function already होता है, ठीक है? So don't be confused with the floor, ठीक है? n is nothing but a number of element. n क्या होता है? Number of element होता है कि आपको कितने डेटा पे sorting करना है. Suppose if you have 10 data elements, that means आपको 10 डेटा पे sorting करना है, तो आपको पहला distance अगर निकालना होगा, so number of element divided by 2. Suppose if your total elements are 10, so 10 divided by 2 will get the value 5. Suppose if you are getting 15, suppose आपके पास n का वैल्यू 15 है, number of elements 15 है, 15 elements आपके पास है, so 15 divided by 2, what is the answer? Answer is 12.5. Answer is 12.5. So what is the floor value of 12.5? 12.5 को अगर मैं floor value निकालता तो what is the floor value? The floor value is 12. 12.5 का पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू आप कंसीडर करिएगा, ठीक है? दैट मींस 12.5 का इंटीजर क्या कंसीडर करते हो? 12 कंसीडर करते हो. अगर 15.5 होगा तो क्या करोगे? 15 कंसीडर करोगे. 10.2 होगा तो क्या कंसीडर करोगे? 10 कंसीडर करोगे. लाइकवाइज, ठीक है? दैट मींस whenever we are going to find out a gap, so gap or distance is nothing but a total number of elements divided by 2. ये आपका फर्स्ट डिस्टेंस हुआ. क्या हुआ आपका? फर्स्ट डिस्टेंस हुआ. फिर ये जो फर्स्ट डिस्टेंस निकला हुआ है, सो सपोज आपके पास एलिमेंट इस टाइप से है, ठीक है? सो सपोज इस तरीके से ये फर्स्ट एलिमेंट है, देन ये दिस वन सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, देन दिस वन इज योर फोर्थ एलिमेंट, देन दिस वन इज योर फाइव एलिमेंट, देन दिस वन इज योर सिक्स्थ एलिमेंट. मान के चलते हैं डिस्टेंस हमारा 2 है. व्हाट इज द डिस्टेंस वैल्यू? डिस्टेंस वैल्यू इज 2. ओके, दैट मींस ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड एलिमेंट, दिस वन इज योर थर्ड एलिमेंट, दिस वन इज योर फोर्थ एलिमेंट, ये आपका फाइव एलिमेंट है, एंड दिस वन इज योर सिक्स्थ एलिमेंट. ठीक है? सो नाउ दिस वन इज योर सिक्स्थ एलिमेंट. सो अभी सपोज मान के चलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6. 6 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट अ 3. द फर्स्ट डिस्टेंस इज 3. d1 इज इक्वल टू 3. डिस्टेंस कितना निकला है? 3 निकला है. सो डिस्टेंस 3 निकला, तो हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर? दिस वन इज योर फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है. अभी यहां से तीसरा एलिमेंट कौन सा है? देखिए ये आपका यहाँ पे पॉइंटर है, ठीक है? आप 1 पे हो, 1 से 3 डिस्टेंस छोड़िएगा, यानी 3 एलिमेंट छोड़ के. दैट मींस दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3. दैट मींस यहाँ पे थर्ड डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है. दैट मींस ये आपका पहला एलिमेंट इसके साथ कंपेयर होगा 3 छोड़ के, ठीक है? राइट नाउ अगेन फिर इसके बाद ये फोर्थ वाला एलिमेंट किसके साथ कंपेयर होगा? 1 2 3. चलिए 6 के बाद कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो वही पे रुक जाएगा. नाउ अभी सेकंड एलिमेंट, अगर अभी आप यहाँ पे हो, सेकंड पे हो, तो सेकंड किसके साथ कंपेयर होगा? 1 2 3. दैट मींस सेकंड किसके साथ कंपेयर होगा? फिफ्थ के साथ कंपेयर होगा. नाउ 3 किसके साथ कंपेयर होगा? 3 के बाद 3 डिस्टेंस छोड़ेगा, 1 2 3, यानी 3 विल बी कंपेयर विद 6. यानी उतना डिस्टेंस छोड़ के
उतने डिस्टेंस पे जो एलिमेंट होगा उससे कंपेयर होगा. दैट मीन्स योर फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर विद द फोर्थ एलिमेंट. आपका फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ के साथ कंपेयर होगा. अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, फोर्थ वाला एलिमेंट बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है और फोर्थ वाला एलिमेंट आपका छोटा है, तो आपको स्वैप करना पड़ेगा. अगर पहला एलिमेंट ऑलरेडी छोटा है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं होगी. वैसे ही आपका सेकंड एलिमेंट किसके साथ कंपेयर होगा, सेकंड एलिमेंट कंपेयर विद द फिफ्थ एलिमेंट. ठीक है. वैसे थर्ड पे जो एलिमेंट होगा वो किसके साथ कंपेयर होगा, वो आपका सिक्स्थ पे कंपेयर होगा. दैट विल हैपन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिस्टेंस के लिए. यानी आपका जो डिस्टेंस वैल्यू निकला है, उस डिस्टेंस पे जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के साथ आप कंपेयर करोगे. यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस वैल्यू 3 था, तो पहला एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा. सेकंड एलिमेंट 3 डिस्टेंस छोड़ के सेकंड एलिमेंट कंपेयर विद सेकंड एलिमेंट कंपेयर विद फिफ्थ एंड थर्ड एलिमेंट कंपेयर विद सिक्स्थ. लाइकवाइज आपके एलिमेंट कंपेयर हो जाएगा. दैट मींस दिस इज इन द इटरेशन नंबर 1 और स्टेप नंबर 1 व्हेन d1 whatever value calculated by your formula, so d1 जो भी होगा that is for gap 1 और distance 1. so ये आपका step 1 हो गया. now in step 2 what you have to do in step 2, step 2 में आपको फिर से distance d2 calculate करना पड़ेगा. but in the second step you need to calculate the distance d2. अभी distance d2 कैसे निकालेंगे, the distance d2 will be calculated as floor of d1 divided by 2. यानी जो previous distance आया था उसको आप divide by 2 करो. दैट मींस अभी पहला डिस्टेंस कितना था, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा डिस्टेंस d1 आया था 3. 6 एलिमेंट है, 6 डिवाइड बाय 2 किया तो हमको वैल्यू मिला d1 का 3. ठीक है, d1 का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला. नाउ d2 कैलकुलेट करना है, तो d2 जब कैलकुलेट करोगे तो d2 इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाय 2. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फॉर गैप d1 or what was value for distance d1 is 3. So 3 divided by 2, answer is 1.5. What is the answer? Answer is 1.5. So 1.5 का फ्लोर वैल्यू इज 1. क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, दैट मींस हर एक एलिमेंट उसके एडजेसेंट से कंपेयर होगा. यानी एक 1 का ही डिस्टेंस है. दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट फिर कंपेयर होगा 2 से, सेकंड विद थर्ड, थर्ड विद फोर्थ, फोर्थ विद फिफ्थ, एक एक डिस्टेंस छोड़. ठीक है, समझ में आया. फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्टेंस वैल्यू 5 है तो d1 5 है तो सेकंड d2 क्या आएगा आपका 2.5 हो जाएगा, तो 2 आएगा. फिर थर्ड डिस्टेंस क्या आएगा, d3 क्या आएगा 2.5. आपका 2 था, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1. सो नेक्स्ट टाइम आपको 1 मिलेगा. दैट मींस जब तक डिस्टेंस आपका 1 को रीच नहीं करता, जब तक डिस्टेंस 1 नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है, ये स्टेप्स फॉलो करनी है. और जैसे आपका 1 आ गया तो आपके लास्ट स्टेप में मैक्स ऑफ टू मैक्स एलिमेंट आपको सॉर्टेड में मिलेगी. लेकिन हो सकता है कि सारी स्टेप सारे डिस्टेंस आपका 1 रीच करने के बावजूद भी आपका कुछ एलिमेंट सॉर्टेड में नहीं आया है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू अप्लाई द प्लेन इंसर्शन सॉर्ट मेथड. व्हाट आई सेड, ये आपने डिस्टेंस पूरे देख लिए. ठीक है, आपके सारे डिस्टेंस खत्म हो गए. d1 आपका डिस्टेंस 1 तक रीच कर गया, डिस्टेंस 1 आ चुका है, डिस्टेंस 1 पे आपने सारे एलिमेंट सॉर्ट कर दिए. लेकिन सारे स्टेप्स होने के बाद भी एक दो एलिमेंट ऐसे आपके छूटेंगे. हो सकता है कि आपके एक दो एलिमेंट छूट सकते हैं जो अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो उस समय पे आपको यू हैव टू यूज अ प्लेन इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक. व्हाट यू हैव टू यूज, you have to use a plain insertion sort technique in the last phase. आपका डिस्टेंस d1 डिस्टेंस 1 होने के बाद at the last stage you need to follow the insertion sort plain insertion sort techniques for sorting the elements. I think everybody got it. Now we'll see one simple example. See here, how many total number of elements are given. Total elements कितने हैं, so total elements are here 1 1 46 2 83 41 102 5 70 31 64 49 80. So that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Total elements are 11. Total elements कितने हैं हमारे, 11 है. That means what is the n value, n is equal to 11. That means n का वैल्यू कितना है हमारे पास, n is equal to 11 है. That means n is equal to 11 है. So first of all we need to find out the distance. Now here total number of elements are 11. Total number of elements are 11. Total 11 elements are, that means n is equal to 11. n is equal to 11. So first of all we need to find out the first distance. Distance suppose d1. अगर d1 निकालना तो how we are going to find out d1? So d1 which is equal to, that is distance d1 is equal to 11 divided by 2. Total elements are 11. 11 divided by 2 करते हो, so you will get a value
5.5. What answer you will get? You will get a value 5.5. So what is the value of 5.5? 5.5 का फ्लोर अगर निकालता हूँ, so you will get a 5. आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. You will get a value 5. So 11 divided by 2, you will get an answer 5.5. So 5.5 का floor, it is a 5. So distance 1, distance B1 is 5. So distance B1 is 5 अगर है, so अगर ये आपका पहला एलिमेंट है, this one is your first element, ये आपका पहला एलिमेंट है, तो ये किसके साथ कंपेयर होगा? तो 5 डिस्टेंस छोड़ के, so this one is first, this second, third, fourth and 5. ठीक है, so ये आपका फिफ्थ एलिमेंट है, ये आपका फिफ्थ एलिमेंट है, ये आपका फिफ्थ एलिमेंट है. That means your 46 will compare with 5. 46 किसके साथ कंपेयर होगा? 5 के साथ कंपेयर होगा. एंड 5 किसके साथ कंपेयर होगा? 5 के बाद देखिएगा 1 2 3 4. ओके, नाउ चेक. पहले 46 5 के साथ कंपेयर होगा, तो 5 46 की जगह जाएगा, 5 46 की जगह जाएगा और 46 5 की जगह जाएगा. ठीक है, दैट मींस नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्टली लिखा हुआ है. ठीक है, मिडल स्टेप यहाँ पे एक स्टेप फिर से आएगा जो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 46 की जगह जाएगा, 46 5 की जगह जाएगा. फिर यहाँ से यहाँ पे 46 आने के बाद ये किसके साथ कंपेयर होगा? 18 के साथ. सो 46 कंपेयर विद 18, सो 18 46 की जगह जाएगा और 46 18 की जगह जाएगा. लेट अस यहाँ पे देखिए ये स्टेप में डायरेक्टली आंसर लिख दिया है. सो 5 18 एंड 46 तीन नंबर आपके हो गए. नाउ व्हाट हैपेंड विद सेकंड? अभी ये हो गया, अभी सेकंड से स्टार्ट करें. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का हो गया, अभी सेकंड से स्टार्ट करेंगे. तो सेकंड पे क्या है? सेकंड है. ठीक है, नाउ यहाँ से पांचवा एलिमेंट कौन सा आएगा? सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड दिस वन इज योर डिस्टेंस b2. ठीक है, ये आपका यहाँ से देखिए काउंट करिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, दैट इज दिस एलिमेंट विल बी कंपेयर विद सेकंड जो आएगा आपका, वो किसके साथ कंपेयर होगा? इसके साथ कंपेयर होगा. पांच पांच डिस्टेंस छोड़ के आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट डिस्टेंस के लिए 5 डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 5. सो फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर विद 5, देन 5 के बाद उससे 5 फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर उसके साथ कंपेयर होगा. वैसे ही आपका ये सेकंड वाला सी दैट इज 46 कंपेयर विद 5. ठीक है, आफ्टर दैट 2 के बाद 5 डिस्टेंस पे क्या है? 1 2 3 4 5. फिर 2 किसके साथ कंपेयर होगा? 17 के साथ कंपेयर होगा. फिर 83 किसके साथ कंपेयर होगा? 5 डिस्टेंस छोड़ के 31 के साथ. फिर 41 किसके साथ कंपेयर होगा? 41 विल बी कंपेयर विद दिस वन. देन 102 किसके साथ कंपेयर होगा? 10 विल बी कंपेयर विद दिस वन. ठीक है, एंड देन अगेन 5 किसके साथ कंपेयर होगा? 5 विल बी कंपेयर विद दिस वन. Likewise, that is every element will be compared with the element by skipping the distance or by considering the gap. उतना एलिमेंट छोड़ दो. ठीक है, सो नाउ डिस्टेंस d1 आपका कितना था? 5 था. ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया. इन द सेकंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इन द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? गैप 2 में. ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका जब d1 इज इक्वल टू 5 था, तो d1 स्टेप इज ओवर. डिस्टेंस d1 कंसीडर करके आपने 5 5 5 5 डिस्टेंस छोड़ के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया. नाउ d2 डिस्टेंस, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट d2 डिस्टेंस? d2 इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाय 2. सो d1 का वैल्यू कितना था? डिस्टेंस 1 का वैल्यू 5 था. d1 का वैल्यू कितना था? 5 था. सो 5 डिवाइडेड बाय 2 you will get the answer 2.5. 5 divided by 2 you will get the answer 2.5. 2.5 का इंटीजर क्या होगा? 2 होगा और फ्लोर वैल्यू क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, सो यहाँ से फिर आपका गैप 2 स्टार्ट हो जाएगा. दैट मींस ये जो प्रोसेस चली हुई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका d1 के लिए इतना जो क्वेश्चन एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ तक के, ये सारा d1 के लिए है. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 5 से कंपेयर हुआ, फिर सेकंड 6 से, थर्ड 7 से, ऐसे कंपेयर करते हुए चले गए. फिर गैप 2 यानी डिस्टेंस d2. फिर गैप 2 के लिए आपका क्या होगा? यानी कितने इसका डिस्टेंस आपको छोड़ना है? यानी 2 का डिस्टेंस छोड़ना है, दो वैल्यू का डिस्टेंस छोड़ना है. दैट मींस सपोज अगर हम यहाँ पे 5 पे है, तो इफ वी आर इन 5 यहाँ पे. ठीक है, सो हाउ 5 विल कंपेयर विद 5? दो डिस्टेंस b2 कितना आपका? 2 है. 5 के बाद ये 1 हो गया और ये सेकंड हो गया. दैट मींस आपका 5 17 के साथ कंपेयर होगा. 5 विल कंपेयर विद 17.
फिर 2 विल कंपेयर विद, उसके बाद 17 हो गया, 5 विद 17, 17 विद 31, 31 विद 46, 46 विद 83। लाइकवाइज दैट मींस डिस्टेंस 2 में उतना डिस्टेंस छोड़ के आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। वैसे ही फिर से डिस्टेंस d2 हो गया, फिर डिस्टेंस d3 निकालेंगे। d3 कैसे निकालना है, प्रीवियस डिस्टेंस d2 डिवाइड बाय 2, d2 कितना था 2, सो d2 2 था, सो 2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 1, आंसर इज 1। सो 1 1 डिस्टेंस, दैट मींस एवरी एलिमेंट कंपेयर विद एडजेसेंट एलिमेंट। 1 का डिस्टेंस है, दैट मींस हर एक एलिमेंट उसके बाजू वाले के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके तीनों डिस्टेंस खत्म हो गए। तीनों डिस्टेंस खत्म होने के बाद फिर भी अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसे छूटते हैं कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आए, so you have to apply the insertion sort method, that would be a plain insertion sort method, ठीक है। that is first element compare with the zero, first step। second step में second element compare with zero, second element compare with one। third step में third element is targeted, compare with zero, compare with one, compare with two। likewise you have to sort the element। so this is actually the logic behind the shell sort method। now we'll see how we are going to implement the function for shell sort method। तो शेल सॉर्ट के लिए हम लोग फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो ऑलवेज फंक्शन स्टार्ट विद द रिटर्न टाइप। सो void is the return type। so void is the return type। after that the name of the function is shell। so shell is the name of the function। what we require to execute the, what data we required, we have to take from the main program। main program से हमें क्या क्या मिलने वाला है, हमें एक अरे लगेगा और एक नंबर, ठीक है। सो अरे इज नथिंग बट where your actual data is stored, that means array में आपका डेटा जहाँ पे stored है वो array में लगेगा। the name of that array is arr and num is nothing but a total number of elements, num is nothing but a total number of elements। now here I have taken 4 variables, integer I, j, k and 10। मैं for loop यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने I, j के 3 वेरिएबल लिए हुए। मुझे स्टैपिंग करना पड़ेगा, इसलिए टेम्पररी नाम का वेरिएबल लिया गया है, टेम्पररी नाम का वेरिएबल लिया है मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट एवरी टाइम वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, हर एक बार हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसलिए ये पहला फॉर लूप जो चलाया है वो डिस्टेंस के लिए चलाया है। अभी यहाँ पे डिस्टेंस के लिए मैंने आई लिखा है, यू कैन यूज द डी, आप आई की जगह डी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरी टाइम आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस के लिए मैंने ये फॉर लूप चलाया है। सो ये जब फॉर लूप चलेगा, सो आई इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 2। सो सपोज नंबर इज इक्वल टू 10, आपके पास 10 एलिमेंट है, सो 10 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट अ 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू 5। आई का वैल्यू आपको 5 मिल जाएगा, आई का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। दैट मींस आपका पहला डिस्टेंस कितना आया, आपका पहला डिस्टेंस आया 5, योर फर्स्ट डिस्टेंस इज 5, आपका फर्स्ट डिस्टेंस 5 हुआ। फिर आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगर आई 0 से ग्रेटर है, ठीक है, सो आपका ये नीचे जाएगा, नीचे यानी आपका ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये फॉर लूप के पास आएगा। तो फिर सेकेंड फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड फॉर लूप हमने j is equal to I, that is 5, j is equal to I, that is 5, j is less than num is nothing but a 10, suppose 10 elements है तो 10 and j plus plus। so अभी ये पहला जो फॉर लूप आपने चलाया है उसमें आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया कि फर्स्ट टाइम डिस्टेंस क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम डिस्टेंस सपोज 10 एलिमेंट के लिए 5 होगा, ठीक है। सो फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, कि पहला एलिमेंट 5 एलिमेंट छोड़ के आप कंपेयर करने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आप एलिमेंट्स जो डिस्टेंस छोड़ना है उसके लिए आपने ये सेकंड फॉर लूप चलाया, फॉर j इज इक्वल टू i, दैट मींस i कितना है 5, दैट मींस j कहां से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। उसके नीचे फिर एक फॉर लूप चलाया है, फॉर k इज इक्वल टू j माइनस i, फॉर k इज इक्वल टू j माइनस i, दैट मींस व्हाट, j इज इक्वल टू व्हाट 5, j भी आपका 5 है, i भी आपका 5 है, 5 माइनस 5 0, दैट मींस आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। दैट मींस सपोज आपके इस तरीके से एलिमेंट है, यहाँ पे आपका एक एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, this one is your second element, this one is your third element, this one is your fourth element, this one is your fifth element and vice versa, whatever। यहाँ पे आपके ऐसे 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सो ऑलवेज अरे स्टार्ट विद 0, ठीक है। सो ये आपका 0th एलिमेंट है, ठीक है। सो ये कंपेयर होगा पांचवें एलिमेंट के साथ, तो जो पांचवा एलिमेंट है सपोज यहाँ पे आपका ये 5th एलिमेंट है, इसके साथ कंपेयर होगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। सो दैट मींस के वाला लूप हमेशा कहां से स्टार्ट होने वाला है, 0 से स्टार्ट होने वाला है। ऑलवेज योर इनर लूप के ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, जितना भी आपका डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। दैट मींस जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा, अगर डिस्टेंस आपका 3 है तो 3 माइनस 3 अगेन विल गेट 0, ठीक है।
So every time distance will be divide by I is equal to I divide by 2. हमेशा distance divide by 2 होने वाला है. पहले I is equal to 5 था, तो I is equal to 5, that means distance is equal to 5. सेकेंड डिस्टेंस जब निकलेगा तो 5 डिवाइड बाय 2, देखिए यहाँ पे I डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, that means सेकेंड डिस्टेंस आपका 5 डिवाइड बाय 2 यूनिट 2.5, 2.5 को 2 मिलेगा. ठीक है. सो ये वाला पहला फॉर लूप जो है वो आपका डिस्टेंस के लिए है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. सेकेंड फॉर लूप जो है, ठीक है, वो ये बताता है कि आपको कितने डिस्टेंस से आगे बढ़ना है. ठीक है. दैट मींस j इज इक्वल टू I से स्टार्ट किया हुआ है, दैट मींस डिस्टेंसेस कितने छोड़ना है, उसके लिए आपका यहाँ पे सेकेंड फॉर लूप किया हुआ है. और थर्ड फॉर लूप जो दिया हुआ है k इज इक्वल टू j माइनस i, k ग्रेटर देन 0, k इज इक्वल टू k माइनस i. दैट मींस जैसे पहला एलिमेंट पांचवें एलिमेंट के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट छठवें एलिमेंट के साथ, फिर तीसरा एलिमेंट सेवन एलिमेंट के साथ, फिर फोर्थ वाला एलिमेंट 8 एलिमेंट के साथ. लाइकवाइज इतना डिस्टेंस छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, इसलिए ये नेक्स्ट फॉर लूप चला है. देन यू हैव टू चेक कि अरे ऑफ k प्लस i ग्रेटर देन अरे ऑफ k, यानी जो डिस्टेंस पे जो वैल्यू है, यानी 1 नंबर का वैल्यू अगर यहाँ पे जो वैल्यू है आपका फर्स्ट नंबर का है, जीरो लोकेशन का वैल्यू अगर आपको ये वाले लोकेशन के साथ कंपेयर करना है, सो यू हैव टू चेक विद दिस कंडीशन इफ अरे ऑफ k ऑफ प्लस i ग्रेटर देन इक्वल टू अरे ऑफ k अगर है. ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा कि पहला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा एलिमेंट छोटा है, तो नो चेंज, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी आपका बड़ा है. ठीक है. लिसन, इफ अरे ऑफ k प्लस i ग्रेटर देन अरे ऑफ k, कंडीशन इज वाइस वर्सा. आपने आगे वाले डिस्टेंस की वैल्यू आपने देखा है कि वो बड़ी है या छोटी है. दैट मींस आपने ये चेक किया कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बड़ी है फर्स्ट एलिमेंट से. दैट मींस ये वाला एलिमेंट से अगर आपका ये वाला एलिमेंट बड़ा है, सो यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज आपका नेक्स्ट पहला वैल्यू छोटा है, नेक्स्ट वैल्यू बड़ा है, तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज. लेकिन आपका पहला वैल्यू बड़ा है, नेक्स्ट वैल्यू छोटा है, तो यू हैव टू एक्सचेंज. तो एक्सचेंज के लिए ये लॉजिक दिया हुआ है, दैट इज स्टेप अरे ऑफ k, अरे ऑफ k इक्वल टू अरे ऑफ k प्लस i, अरे ऑफ k प्लस i इक्वल टू k. दिस इज द लॉजिक फॉर स्वैपिंग. ओके. सो लाइकवाइज we are going to implement the function for shell sort. Okay, so there are different ways to implement a shell sort. So जैसे हमने डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय 2 करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया. समवन कैन यूज पहले डिस्टेंस 5 अगर आया है तो 5, उसके बाद डिस्टेंस 4 यूज करो, उसके बाद डिस्टेंस 3 यूज करो, उसके बाद डिस्टेंस 2 यूज करो, एंड फाइनली यू हैव टू यूज द डिस्टेंस 1. ऐसे किया तो भी चलेगा, बट ट्राई, बट कीप इन योर माइंड कि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस विद दिस मेथड. फर्स्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नम डिवाइड बाय 2. दैट मींस जितने भी नंबर होंगे उसको डिवाइड बाय 2 करिएगा, आपको पहला डिस्टेंस मिलेगा. फिर जो प्रीवियस डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 करिएगा, आपको नेक्स्ट डिस्टेंस मिलेगा. फिर प्रीवियस डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय 2 करिएगा, उसको आपको थर्ड डिस्टेंस मिलेगा. ऐसे करते करते आप डिस्टेंस निकालिएगा. सो इट विल गेट इजीएस्ट, आपको इजी लगेगा सॉल्व करने के लिए, एंड एवरीथिंग विल गेट क्लियर कि हमने कौन से स्टेप में क्या किया हुआ है. अदरवाइज इफ वी चूज द डिस्टेंस और गैप इज 5, suppose the number of elements are given 10 or 11 and you have selected gap is 5. Okay, so after selecting the gap 5, then the next gap is 4, next gap is 3, next gap is 2, next gap is 1. ऐसे किया तो भी चलेगा, but try to find out the gaps by divided by 2 with the previous gap. ऐसे करोगे so it will be very easy. Okay, so likewise we have to execute the function. So everybody understood what I mean by shell sort, how we can sort the given set of elements using shell sort, and how we are going to implement a shell sort, and how we can say the shell sort is a generalized version of the insertion sort. Hope everybody is clear with this. So thank you one and all.